reaction, we move on to first order reactions and we calculate similarly the integrated equation for rate constants for a first order reaction. अब हमारे पास इक्वेशन दे रखी है A goes to product और at time t is equals to 0 इसकी concentration दे रखी है x. Correct. At time t is equals to any time t इसकी concentration हो जाती है A minus x, ठीक है, और प्रोडक्ट की concentration हो जाती है x. Correct. अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट होती है dx by dt. Correct. is equals to k times a raised to the power. फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1. Correct. So that is the only difference between a zero order and first order reaction. We change the exponent of the concentration of A in the rate law expression from 0 to 1 since here the order of the reaction is 1. इसका मतलब कि K multiplied by A minus X as the concentration of A is A minus X. Correct. अब मैं इसको मैनिपुलेट कर रहा हूँ dx upon A minus X is equals to K times dt. Correct. We just rearrange the terms here. अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ. इंटीग्रेशन x is equals to 0 to x is equals to x. Correct. From time t is equals to 0 to any time t is equals to t. Correct. तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln of a minus x Exactly. multiplied by minus Correct. is equals to k multiplied by t. Correct. इसमें मैं ये इनिशियल x इनिशियली 0 है, फाइनली x, और यहाँ टाइम t इनिशियली 0 और टू टाइम t इज इक्वल्स टू t. करेक्ट. अब मैं लिमिट्स इसमें पुट कर देता हूँ. माइनस ऑफ ln ऑफ a माइनस x माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस ln ऑफ a. करेक्ट. इज इक्वल्स टू k मल्टीप्लाइड बाय t माइनस 0. एग्जैक्टली. अब इसमें मैं ln में लगा देता हूँ a अपॉन a माइनस एक्स. एज ये माइनस हो रहा है इस वजह से log में डिवाइड हो जाएगा. Because ln of a minus ln of b can be put as ln of a by b. इसका मतलब कि ये इक्वल हो जाएगा k मल्टीप्लाइड बाय t से. Okay. ये है इंटीग्रेटेड इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए. Okay. अब मैं आपको इसके लिए t हाफ बता देता हूँ. t हाफ के टाइम x क्या होता है? x is equals to a by 2. Correct, because t half implies that half of the amount of a should have reacted. So a minus x should be a by 2, which implies that x should be a by 2. अब ln of a upon a minus a by 2 हो जाएगा as x a by 2 है. Correct. जो कि k multiplied by t हो जाएगा t half. Correct. इसका मतलब है ln of a upon a by 2 is Correct. We're equals just to solving the expression here. ln of 2 is equals to k multiplied by t half. Okay. इसका मतलब t half हो गया k ln Ln of 2 divided by k. k. Correct. So that is the expression to calculate the value of half time for a first order reaction. And before that, here we have calculated the expression for the integrated equation of rate constant for a first order reaction. Basically, whenever we have to derive the integrated equation for rate constant, we assume that the initial concentration of the reactant is A, and suppose at time t x part of the reactant has reacted, so the concentration at that time t is A minus x, and here x amount of product has been formed. Then we equate the rate law expression to the rate of the reaction, and integrating and putting limits appropriately, we can calculate the expression of the integrated equation for the rate constant, and putting x is equals to, or rather we put A minus x is equals to A by 2, from which we get x is equals to a by 2. We can calculate the expression for half time for any order reaction. So this was done for the first order reaction over here. So let us analyze second order reaction in which A goes into products and the rate law is a second order rate law. ठीक है. अब इनिशियली अपने पास टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन a दे रखी है a, और टाइम एनी टाइम t इज इक्वल टू t पे कॉन्सेंट्रेशन हो गई a माइनस एक्स. अब अपन को पता है कि रेट सेकेंड ऑर्डर के लिए रेट लॉ dx बाई dt इज इक्वल्स टू k टाइम्स a माइनस एक्स का स्क्वायर होता है.
इसका मतलब क्या हो गया कि dx अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू dt यस मल्टीप्लाइड बाय k। अब इसे इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करेंगे इसे x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू x और t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू एनी टाइम t। इसका मतलब इसका आंसर आता है अपने पास k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t x बाय a मल्टीप्लाइड बाय a माइनस एक्स। ओके, अब अपन पढ़ते हैं इसके t हाफ के बारे में। t हाफ Okay. इसका क्या होता है? t हाफ होता है जब कंसंट्रेशन आधी हो जाती है प्रोडक्ट्स की। बिल्कुल सही, जब कंसंट्रेशन आधी हो जाती है। कंसंट्रेशन आधी मतलब x इज इक्वल्स टू a बाय 2। इसका मतलब हो गया कि k मल्टीप्लाइड बाय t हाफ इज इक्वल्स टू x मतलब a बाय 2 अपॉन a मल्टीप्लाइड बाय a माइनस a बाय 2 मतलब a बाय 2। इसका आंसर आ जाता है 1 अपॉन a। ओके, तो फिर t हाफ क्या हो जाएगा अपने पास? t हाफ हो जाएगा 1 अपॉन ka। ओके, अच्छा, तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल सही। अच्छा, तो हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा? इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ ये देखा कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम कैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को टाइम के हिसाब से वेरी करा सकते हैं, हम उसका रिलेशन निकाल सकते हैं। तो हमने लिखा कि dx बाई dt इज इक्वल टू के एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और हमने जैसे इसको इंटीग्रेट कर दिया और सही लिमिट्स डाल दी। सो चलिए अब हम देखते हैं कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है जिसमें एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। जैसे कि अगर एक रिएक्टेंट जो है वो मीडियम है तो हाँ, उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगी। बिल्कुल सही। अब अपन को इस क्वेश्चन में दे रखा है a प्लस बी गोज टू प्रोडक्ट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर a की कॉन्सेंट्रेशन है a और b की कॉन्सेंट्रेशन है b, और एट एनी टाइम t पर a की कॉन्सेंट्रेशन है a माइनस एक्स और b की कॉन्सेंट्रेशन है b माइनस एक्स। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो जाएगी x। बिल्कुल सही। और इसमें v को एक्सिस में दे दिया गया है। अब सबसे पहले अपन रेट लॉ लिखते हैं। रेट लॉ होता है dx बाई dt। इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ है k टाइम्स a की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय b की कॉन्सेंट्रेशन, एज ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ओरिजिनली। इसका मतलब हो गया dx बाई dt इज इक्वल्स टू k मल्टीप्लाइड बाय a माइनस एक्स b माइनस एक्स। बिल्कुल सही। अब b एक्सिस में है मतलब कि b बहुत ज़्यादा है, इसके सामने x को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, तो हम b की कंसंट्रेशन को एक तरह से कांस्टेंट मान सकते हैं। बिल्कुल सही। इसका मतलब हो गया k मल्टीप्लाइड बाय b टाइम्स a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू dx बाई dt। ये तो कुछ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइप लग रहा है। हाँ बिल्कुल, ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइप लग रहा है जिसमें k डैश इज इक्वल्स टू k टाइम्स b है। अच्छा, k डैश जो कि नई रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है। बिल्कुल सही। अब अपन इसका फॉर्मूला निकालेंगे जिसमें अपन को सिर्फ और सिर्फ k को k डैश से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला था k टाइम्स t इज इक्वल्स टू ln ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। और इस रिएक्शन के लिए जो हमारा k है वो k इंटू b है। हाँ, तो ये k डैश होगा और k डैश होता है k इंटू b मल्टीप्लाइड बाय t इज इक्वल्स टू ln ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। बिल्कुल सही। सो इस क्वेश्चन में हमको ये याद रखना चाहिए, जब भी एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है तब उसे हमें कांस्टेंट की तरह मान सकते हैं, क्योंकि जो उसमें से प्रोडक्ट कम होगा वो बहुत ही छोटा होगा। बिल्कुल सही। So now that we have seen first order, zero order reactions, we now let move to nth order reaction. nth ऑर्डर रिएक्शन में अपने पास रिएक्शन दे रखी है a गोज टू प्रोडक्ट और t इज इक्वल्स टू 0 पर a की कॉन्सेंट्रेशन है a और t इज इक्वल्स टू एनी टाइम t पर a की कॉन्सेंट्रेशन है a माइनस एक्स। और अपन को पता है nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लॉ होगा dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू k मल्टीप्लाइड बाय
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर एन। जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है, ए माइनस एक्स। बिल्कुल सही। तो dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू k मल्टीप्लाइड बाय a माइनस एक्स रेज टू द पावर n। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए इसको dx अपॉन a माइनस एक्स रेज टू द पावर n लिखा इज इक्वल्स टू k मल्टीप्लाइड बाय dt। इंटीग्रेट करते टाइम t इज इक्वल्स टू 0 टू टाइम t इज इक्वल्स टू t एंड x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू x। इसको इंटीग्रेट करने पे अपने पास आता है k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय t मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन a माइनस x रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a रेज टू द पावर n माइनस 1। ठीक है। अच्छा, क्या हमको ये याद करने की जरूरत है? नहीं, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, मगर इसके प्रोपोर्शनलिटी याद कर लेना। जैसे कि nth ऑर्डर के लिए ये 1 अपॉन ए रेज टू द पावर n माइनस 1 के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। अब इसके लिए टी हाफ निकालते हैं। टी हाफ के टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये प्रोडक्ट क्या हो जाता है, x इज इक्वल्स टू a बाई 2। वो आधी हो जाती है। हाँ, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आधी हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय t मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस एक्स a बाई 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a रेज टू द पावर n माइनस 1। अच्छा, इसको सॉल्व करने पे अपने पास आता है t हाफ इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 k मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू द पावर n माइनस 1। इससे हम ये बता सकते हैं कि t हाफ हमेशा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जिसमें पावर होगी n माइनस 1। ओके, मतलब कि एक nth ऑर्डर रिएक्शन, एक nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ जो है वो हमेशा इनिशियल कंसंट्रेशन टू द पावर n माइनस 1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बिल्कुल सही, ये याद रखना है आपको, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जैसे कि अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है, मतलब हमारा रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, तो टी हाफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के। बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब अपन पढ़ते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के बारे में। इसमें अपने पास दे रखा है कि dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाइड बाई ए रेज टू द पावर n है, और हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n इज इक्वल्स टू होता है 0। ओके, नाउ रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम इनवर्स। ओके, इसका मतलब हो गया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ओके, अब अपन निकालते हैं यूनिट फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1, और इसका यूनिट हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इनवर्स। इसका मतलब हो गया लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब अपन निकालते हैं nth ऑर्डर के लिए। nth के लिए तो n इज इक्वल्स टू n ही है। अब इसके लिए फॉर्मूला है कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 1 माइनस n। ये याद रखना है, n रेज टू द पावर 1 माइनस n होता है मल्टीप्लाइड बाय टाइम इनवर्स। इसका मतलब है मोल पर मोल रेज टू द पावर 1 माइनस n मल्टीप्लाइड बाय लीटर रेज टू द पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड इनवर्स। अब इससे इस फॉर्मूले से अपन हर एक का निकाल सकते हैं। जैसे कि n इज इक्वल्स टू 0 डाला, तो फिर n इज इक्वल्स टू 0 डालने पे इसकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट आ गया। इसका मतलब n इज इक्वल्स टू 0 के टाइम पे आया था अपने पास ये मोल, मतलब कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के।
रेट कांस्टेंट, और फर्स्ट ऑर्डर में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट कांस्टेंट के। सो बेसिकली यहाँ पे तो हमने सिंपल जैसे dx/dt था, तो dx में कंसंट्रेशन की यूनिट है, dt में टाइम की यूनिट है, लाइक जैसे यहाँ देखा हमने dx/dt, सो हम सिर्फ a की पावर n को LHS में ले गए और k की यूनिट सिंपल हाँ निकाल लिया। सिंपल वैसे ही निकाला है।